आसनसोल जिला अस्पताल में पिछले कुछ समय से जरूरी दवाओं की किल्लत देखी जा रही थी, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संदर्भ में हमने अस्पताल के एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से दवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण सप्लायर पुराने कीमतों में दवाओं की सप्लाई करने में असमर्थ थे। इसी वजह से दवाओं की किल्लत देखी जा रही थी, लेकिन नया टेंडर निकाला गया है और नए टेंडर के आधार पर दवाओं की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। इस वजह से दवाओं की अब उतनी किल्लत नहीं रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि दवाओं की किल्लत के कारण मरीजों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई थी। আমাদের কিছু ভেন্ডার কিছু মেডিসিন দিতে পারছিল না, যে রেট ছিল আগে টেন্ডারের সেই রেট এখন বেড়ে গেছে, সেটার জন্য দিতে পারছিল না। এখন তার মধ্যে কিছু কিছু আইটেম আমরা নতুন ভেন্ডার সিলেকশন হয়েছে এবং নতুন ভেন্ডার থেকে কিছু কিছু পাচ্ছি, যেগুলো আমাদের খুব শর্টেজ ছিল, খুব কমন ওষুধ, সেগুলো আমরা কিছু নিজেরা টেন্ডার করে কিনেছি, সেভাবে মেকআপ করার চেষ্টা চলছে। এবং তার যেগুলো পাচ্ছিল না তার মধ্যে কিছু কিছু আইটেম অলরেডি ঢুকতে শুরু করেছে নতুন ভেন্ডারের মাধ্যমে। প্রথম যে কিছুদিন পরে মানে হয়েছিল, মানে যে কাফি মানে শর্টেজ ছিল, তো মানে মেকআপ হয়ে গেছে। সবগুলো যে মেকআপ হয়েছে বলবো না, কিন্তু আমরা অনেকগুলোই কিনেছি, আমরা টেন্ডার করে লোকাল টেন্ডার করে কিনেছি। আর কিছু হাই অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো সেগুলো এখনও পর্যন্ত সব পাচ্ছি না, আমরা কিনে চালাচ্ছি। প্যারাসিটামল, মেটফরমিন যেগুলো কমন ওষুধ, সুগারের ওষুধ, প্রেশারের ওষুধ, এগুলো কিছু শর্ট ছিল, আমরা কিনেছি কিছু। এখন সব প্রেসক্রিপশন ভালো হয়ে গেছে। আমাদের যে পরিমাণ লাগবে সেই পরিমাণ হয়তো আমরা কিনতে পারিনি, আমরা যেহেতু একটা লিমিটের মধ্যে কিনতে হবে, তো আমরা মেকআপ দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। স্যার, হঠাৎ শর্টেজ হওয়ার কারণটা? এটা ওষুধের অনেক দাম বেড়েছে এবং যে রেটে টেন্ডার হয়েছিল সেই রেটে ওরা সাপ্লাই দিতে পারছে না, সেই জন্যে ওরা সব দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল ভেন্ডাররা। সেই জন্য আবার নতুন করে টেন্ডার হয়েছে এবং নতুন করে টেন্ডার হয়ে ভেন্ডার কিছু কিছু আসছে এবং আমরা সেইগুলো শুরু করছি। শর্টেজ জন্য আমাদের কোনো অসুবিধা হয়েছে জেলাতে? খুব বেশি অসুবিধা হয়েছে বলবো না, আর অসুবিধা হয়নি তাও বলবো না, কারণ অনেক ওষুধই সাপ্লাই দিতে পারা যায়নি। হয়তো যেগুলো যারা রেগুলার প্রেশার ওষুধ বা সুগার ওষুধ খায়, যে সময় ছিল না তাদের কিনতে হয়েছে, এগুলো অসুবিধা হয়েছে। छात्र नेता अनीस खान की हत्या के विरोध में आज आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने CPI-ML की तरफ से पथ सभा का आयोजन किया गया। दलित और संख्या लघु जनमंच के सदस्य यहां उपस्थित थे। इस मौके पर CPI-ML नेता प्रदीप बैनर्जी ने कहा कि जिस तरह से अनीस खान की हत्या की गई है वे नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी में हत्यारे आए थे और अनीस की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासन कितनी लाचार है ये बात सामने आती है। उन्होंने अनीस हत्याकांड में असली दोषियों को सजा देने की मांग की और इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। वहीं बीरभूम के देवचा पचामी में कोयला उत्खनन के लिए राज्य सरकार द्वारा OCP बनाने का भी विरोध करते हुए प्रदीप बैनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों से उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों को छीनना चाहती है, जो वे कभी नहीं होने देंगे। খানের হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে সাথে সাথে বীরভূম জেলায় দেউচা পাচামি প্রকল্প নামে যে কয়লা খনি চালু করার চেষ্টা চলছে, সেই কয়লা খনি প্রকল্পের সার্বিক বিরোধিতা করে কয়লা খনি প্রকল্পের বাতিল করার দাবিতে ইতিমধ্যেই সেখানে যে জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি গড়ে উঠেছে, তার আপনারা জানেন সেটা নিয়ে 20 তারিখের জনসভা হয় এবং জনসভার পর নেতা কর্মী আদিবাসী সহ বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে দেউচা পাচামি কয়লা খনি প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনের নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আজকে আমরা CPI-ML লিবারেশন এবং অন্যান্য গণসংগঠনের তরফ থেকে এই পথসভার আয়োজন করেছি। এই পথসভায় আমাদের যে কর্মীরা উপস্থিত আছেন তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জেলা সম্পাদক সুরেন্দ্র কুমার, চিত্তরঞ্জনের রেল শ্রমিক নেতা প্রদীপ ব্যানার্জি, দলিত সংঘর্ষ সমিতির স্বপন দাস, সংখ্যালঘু দলিত সংখ্যালঘু মঞ্চের স্বপন দাস,
স্বদেশ চ্যাটার্জি, এরা সবাই আজকে উপস্থিত আছেন। আপনারা যদি একটু বক্তব্যটা শুনে যান তাহলে আমাদের যে মূল বিষয়টা আজকে আপনাদের পরিষ্কার হবে। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड इलाके के कॉलोनी एरिया में बने एक सामुदायिक भवन में इस वार्ड से नवनिर्वाचित पार्षद अख्तरी खातून ने टीएमसी कर्मियों और स्थानीय लोगों को दावत दी। दावत की सबसे विशेष बात रही कि हरे रंग की मिठाई। इस संदर्भ में अख्तरी खातून ने कहा कि मिठाई का रंग हरा इसलिए किया गया है क्योंकि नगर निगम चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी को जो भारी बहुमत हासिल हुई है उसी को समर्पित करते हुए मिठाई का रंग हरा किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से टीएमसी को 106 में से 91 सीटों पर जीत मिली है। इसी खुशी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि वे अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता के बिना कुछ नहीं है। ऐसे में 35 नंबर वार्ड से पार्षद चुने जाने के बाद वे अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता का शुक्रिया अदा करना चाहती थी और यही वजह है कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नजीबुल खान, मेहन खान आदि उपस्थित थे। नजीबुल खान ने कहा कि 21 फरवरी को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मां का दर्जा देते हुए कहा कि वे पूरे देश के लोगों के लिए मां से कम नहीं हैं। 35 नंबर वार्ड में आप लोग जानते हैं कि ये जितना औरतें हैं, जितना सब है, सब दीदी का कुर्ती है। इन लोग दीदी का हाथ में दिया और से ज़्यादा वोट से सब लीड दिया। इसी का खुशी में आज हम लोग इन लोग को इन्वाइट करके खाना पीना खिलाया। अच्छा, हमने इस इनवाइट में खाना में हम लोगों ने देखा कि ग्रीन रंग का मिठाई, इसकी क्या वजह है? ग्रीन हम लोग ग्रीन मिठाई हम लोग ग्रीन मिठाई की है। मैंने ये हम लोग का सिंबल ग्रीन है, झंडा ग्रीन है। ये मैसेज कहाँ देना चाह रही हैं आप? मिठाई को रंगीन करके ग्रीन कहाँ, मैंने क्या मैसेज देना चाह रही हैं? मैसेज देना ये चाहते हैं कि पूरा पश्चिम बंगाल ग्रीन है, हम लोग सब ग्रीन है। पश्चिम बंगाल का आवाम ग्रीन है तो रसगुल्ला क्यों नहीं ग्रीन हो? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अख्तरी खातून।